Good morning, everyone. Moving towards the next topic of head and neck, that is scalp. Scalp will be studied under different subheadings like the layers of scalp, what are the muscles of scalp, what is the nerve supply and arterial supply of scalp, what is the venous drainage and lymphatic drainage of the scalp, and the very most important part of the lecture, that is applied anatomy. So scalp it is consisting of skin in the superficial most layer, which is normally a hair bearing skin. Okay, like we have non hair bearing skin also, that is our palm and sole. Okay, so here we have thick skin in consistency, not in histological type. Okay, so we have thick type of skin here, but it is normally hair bearing, and a subcutaneous connective tissue is also present here. Now, what is the extension of scalp? That it extends from anterior portion, from the supraorbital margin, like you can see here a red arrow is here. So it extends from the supraorbital margin in front up to the superior nuchal lines of the occipital bone behind. Okay, so anterior demarcation is your supraorbital margin, and posterior boundary line is the external occipital protuberance and the superior nuchal line arising curvely from it. Okay, now laterally where the scalp extends, that it extends up to the zygomatic arch by the means of temporal fascia. कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे अभी. ठीक है, तो lateral boundary आपकी क्या है? zygomatic arch है. So here now you have anterior boundary, posterior boundary and the lateral boundaries of the scalp. Now this is the cut section, vertical section of the scalp layer, showing layers from superficial to deep, as well as it is showing in the lower part the brain tissue. You can see the sulci and gyri, and in the middle portion a vertical groove is present here. This portion is showing the median fissure. ओके, एंड द सुपीरियर सैटल साइनस जस्ट बिलो द क्रेनियल बोन. तो यहाँ पे येलो कलर की जो मोटी सी प्लेट दिख रही है, ये आपकी स्कल बोन है. ठीक है, वॉल्ट है स्कल का, और उसके ऊपर में आपकी 5 लेयर आपकी बनी हुई है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो स्कैल्प कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप. द निमोनिक इज सेम एज इट्स एब्रीविएशन SCALP. Okay, so first layer, the superficial most, is the skin. I have already told you that it is a hair bearing skin. Okay, although histologically it is a thin variety, but in consistency it is thick type of skin. Okay, now next layer is your connective tissue layer. Then from A we have aponeurosis, or known as the Galea aponeurotica layer or epicranial layer. Then we have loose areolar tissue layer, and the last is your pericranium. Pericranium is nothing but the outer periosteum of the skull bone. ठीक है, जैसे स्कल हर बोन की एक आउटर कवरिंग होती है, इसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम. इनर लाइनिंग होती है, इसे बोलते हैं हम एंडोस्टियम. तो यहाँ पे जो पेरियोस्टियम ही है उसी को हम यहाँ पे पेरिक्रेनियम बोल रहे हैं. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ईच लेयर वन बाय वन. सो स्किन, इट इज थिक in consistency, again I am repeating, not histologically. It bears numerous hairs, sweat glands and sebaceous glands, and due to the abundance of the presence of sebaceous gland, this is the most common site for the sebaceous cyst. Coming to the connective tissue layer, this connective tissue layer, it is very dense. Okay, you can see the red marked connective tissue layer. आप स्किन के नीचे देखिए, आपको 2 लेयर के बीच में फाइब्रस सेप्टा रन करते हुए दिख रहे हैं. सो दिस लेयर इज योर फाइब्रस एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ फैटी टिश्यू लेयर. सो द फाइब्रस सेप्टा, इट कनेक्ट्स द सुपरफिशियल एंड द डीप लेयर, और यू कैन से द फाइब्रस सेप्टा कनेक्ट द स्किन, द सुपरफिशियल लेयर, टू द अंडरलेइंग एपोन्यूरोसिस लेयर. Okay, the Galea aponeurotica and the occipitofrontalis muscle. So this layer is fibrofatty, as well as it is very richly innervated and richly vascular. So it has numerous arterial and venous supply. Okay, so all the venous blood, the superficial veins of scalp is present here. Fibrous tissue is present here. सो एनी इंजुरी इन दिस लेयर विल लीड टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग. जो भी आपकी सुपरफिशियल इंजुरी होती है स्कैल्प में, तो बहुत ब्लड निकलता है. वो इसलिए निकलता है क्योंकि इस लेयर में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी खासी है, और इसी कारण से यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. साथ ही साथ इस जगह पे ब्लीडिंग आपकी लगातार होते रहेगी. क्यों? क्योंकि ये जो आपकी फाइब्रस सेप्टा है, ये इन वेसल की वॉल से भी चिपकी हुई रहती है. ठीक है,
that is the walls of the vessels are adherent to this fibrous tissue, fibrous network. That's why in case of injury or cut in the blood vessel, uh, the blood vessel fail to contract and produce vasoconstriction. ठीक है, तो आप ब्लड वेसल में इंजरी हुई लेकिन वो अपने आप कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि फाइब्रस सेप्टा की वॉल से वो एडहेरेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या है, फिर वहाँ पे जब आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने के कारण जो वॉल्स अप्रॉक्सीमेट होंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लीडिंग वहाँ पे खत्म होगी। अदरवाइज इट विल लीड टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग का दो कारण हो गया, एक तो ये रिचली वस्कुलर है, सेकेंड थिंग द वेसल्स वॉल आर अटैच टू द फाइब्रस सेप्टा ड्यू टू विच द वेसल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एनी इंजुरी। इज इट क्लियर? So now next, the arteries here are basically the branches of the external and internal carotid arteries, and there is a free anastomosis between the branches of the two vessels. Clear? Now the next layer is your aponeurotic layer, that is आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर में आपको जितनी अनकलर्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, सामने मसल दिख रही है, पीछे की तरफ मसल दिख रही है और बीच में आपको एक अनकलर्ड या ग्रे स्लेटी कलर का क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, देयर इज योर एपोन्यूरोसिस ऑल्सो नोन एज गैलिया एपोन्यूरोटिका और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एपोन्यूरोसिस? इट इज़ अ थिन टेंडिनस हीट। हमने कहीं पे भी एपोन्यूरोसिस की बात करते हैं वो क्या है, इट इज़ अ फ्लैटेंड टेंडन बेसिकली। ठीक है, तो टेंडन को ही आपने पीट के पतला कर दिया तो वो आपका एपोन्यूरोसिस बन जाता है। नाउ दिस एपोन्यूरोसिस हैज एंटीरियर अटैचमेंट एंड द पोस्टीरियर अटैचमेंट। एंटीरियरली इट इज अटैच टू द फ्रंटालिस मसल एंड पोस्टीरियरली इट इज अटैच टू द ऑक्सीपिटलिस मसल। दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, इट यूनाइट्स द ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल बेलीज ऑफ द ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। इज इट क्लियर? सो ऑल्सो द लेटरल मार्जिन्स, ये तो हमने सामने और पीछे की बात की। अब लेटरली ये कहाँ पे अटैच्ड हैं? तो लेटरली वी हैव इन द टेम्पोरल फोसा रीजन वी हैव टेम्पोरलिस मसल एंड ओवरलेइंग इट वी हैव टेम्पोरल fascia. So the lateral margins of the epicranial aponeurosis, they are attached to the temporal fascia, and by the means of that temporal fascia they get extended up to the upper border of the zygomatic arch. That's why we have said that the scalp extends laterally up to the zygomatic arch. Is it clear? So skin फ्रॉम बाय नाउ यू कैन वेरी वेल नो अबाउट द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। तो अभी तक हमने कौन कौन सी तीन लेयर पढ़ ली? सबसे पहले आपकी स्किन, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू लेयर और उसके नीचे आपकी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। वन थिंग मोर टू नो दैट ऑल द थ्री लेयर्स दे आर वेरी टाइटली एडहेरेंट टू ईच अदर एंड दे मूव एज अ सिंगल यूनिट। जब भी आपकी स्कैल्प का मूवमेंट होता है तो आपके ऊपर की तीन लेयर जो है वो एक साथ मूव करती है। अब इसका रीज़न भी आपको पता है क्यों? क्योंकि जो आपकी बीच की फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो लेयर थी वो आपकी स्किन और नीचे आपकी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस दोनों को फाइब्रस सेप्टा के थ्रू जोड़ के रखता है और छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है उसको। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेम लेयर, थर्ड लेयर, वी हैव मसल्स इन द थर्ड लेयर, दैट इज योर, अभी हमने नाम बात की थी क्या, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। ठीक है, जिसे हम एपिक्रेनियस मसल भी बोलते हैं क्योंकि क्रेनियम के ऊपर है तो एपिक्रेनियस। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 bellies, 2 bellies in front and 2 bellies in the posterior aspect. 2 bellies in front is the frontal bellies and 2 bellies behind is the occipital belly of occipitofrontalis muscle. Now how this bellies take origin? The occipital bellies, they are smaller and arise from the superior nuchal line and they extend forward over the occipital bone and get attached to the posterior part of the epicranial aponeurosis. The epicranial aponeurosis is also attached posteriorly to the external occipital प्रोटूबेंस। आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीपिटल बेली दोनों के बीच में आपको गैप दिख रही है, तो उस गैप में आपका वो खाली नहीं है, वहाँ पे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस एक्सटेंड कर रहा है जो कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबेंस और थोड़ा सा आप मीडियल पार्ट सुपीरियर न्यूकल लाइन तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो ऑक्सीपिटल बेली का ओरिजिन क्लियर हुआ, मीडियल पार्ट लेटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन से ओरिजिन हो रही है। ठीक, नो फ्रंटल बेली ये ज़्यादा बड़ी है, किससे? ऑक्सीपिटल बेली से, एंड दे अराइज फ्रॉम द eyebrow, the skin and the superficial fascia of the eyebrow. ठीक है, it doesn't have any bony attachment. One thing to get remember here that it doesn't have any bony attachment. It takes origin from the skin and the superficial connective tissue of the eyebrow.
ठीक है, एंड देन इट एक्सटेंड्स बैकवर्ड एंड गेट अटैच्ड ओवर द एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस. One thing more to mark that there is no gap between the origin of the two bellies unlike the occipital belly. Occipital belly में दोनों के बीच में गैप है, जहाँ पे आपकी एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस आ रही थी, यहाँ पे दोनों बेली के बीच में गैप नहीं है, जो कि पूरा आपको रूट ऑफ नोज तक एक्सटेंड कर रहा है इनफैक्ट. इज इट क्लियर? तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं है फ्रंटल बेली का, जबकि ऑक्सीपिटल बेली का बोनी अटैचमेंट है. ये हम अप्लाइड एनाटॉमी में देखेंगे. क्लियर? नो. So coming to the nerve supply of this two muscle, we have occipital belly in the behind and frontal belly in the front. The occipital belly is supplied by the posterior auricular branch of facial nerve, just remember right now, and the frontal belly is supplied by the temporal branch of the facial nerve. Both are supplied by the facial nerve, but the branches arising are at different प्लेसेस. ठीक है, जो टेम्पोरल ब्रांच है इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच, जबकि जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है जस्ट स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन से निकलने के बाद देती है. क्लियर? सो ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस, इसका फंक्शन क्या होगा, जब भी आपकी फ्रंटल बेली ऊपर की तरफ खींचेगी, एपिक्रेनियल एपोनेउरोसिस खींचेगा, तो आपके रिंकल्स अपीयर होते हैं फोरहेड में. ठीक है, द फ्रंटल बेलीज ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस दे रेज द आईब्रो एंड फॉर्म रिंकल्स ओवर द फोरहेड इन केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड हॉरर. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी इस एक्शन के लिए? फ्रंटल बेली को मूव करा रहे हैं हम, तो वी हैव टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. क्लियर? Now coming to the layer which is present just below the epicranial aponeurosis, that is known as subaponeurotic space, or we can say there is a layer that is aponeurotic layer of loose areolar connective tissue. ठीक है, so it is a loose subaponeurotic space. Okay, now what is present in this space? That it is a potential space beneath the epicranial aponeurosis which is limited in front and behind by the origins of the occipitofrontalis muscle. Obviously, तो पीछे की तरफ तो आपका बोनी अटैचमेंट था, क्या? सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोटूबरेंस, बट बिहाइंड एंटीरियरली do we have any bony attachment of this space? No, we have the soft tissue attachment over the skin and connective tissue of the eyebrows. Clear? And obviously it extends laterally as far as the attachment of aponeurosis to the temporal fascia. Clear? Now again the same thing, loose areolar tissue layer, it is occupied by aponeurotic space, loosely connects the aponeurosis to the periosteum, that is the last layer of the scalp. Okay, now this space also contains vessels like small arteries which arise from the emissary veins, okay, arteries which are coming from the occipital artery branches and going to the superficial layers. Okay, there are some emissary veins which are connecting the sagittal sinuses with the superficial veins or draining the superior sagittal sinus anywhere. Okay, so these emissary veins, they are basically valveless veins which connect the superficial veins of the scalp with the diploic veins of the scalp. डिप्लोइक वेन क्या थे, कहाँ थे आपकी? डिप्लोइक वेन पड़े हुए हैं आपकी डिप्लोइक स्पेस में. ठीक है, एंड दे कनेक्ट देम विद द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस लाइक दिस. तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की वेन्स दिख रही हैं जो कि आपकी सेकेंड लेयर से लेके एक्सटेंड करते हुई आपकी पेरिक्रेनियम के भी नीचे, बोन के भी नीचे आपको एक ब्लू कलर का ट्राइंगल दिख रहा है, सुपीरियर sagittal sinus वहाँ से आता हुआ कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है. तो दिस इज योर एमिसरी वेन्स, okay, which are connecting the superficial veins with the intracranial venous sinuses. Now coming to the last layer, pericranium. As told you before that it is the periosteum covering the outer surface of the skull bone. It is none other a new layer. Okay, it is just the periosteum over the skull bone. हर बोन की दो लेयर होती है, बाहर की तरफ पेरियोस्टियम, अंदर की तरफ एंडोस्टियम, ये मैंने आपको बताया था. तो बाहर की तरफ जो पेरियोस्टियम है इसी को हम पेरिक्रेनियम बोल रहे हैं क्योंकि क्रेनियम के ऊपर है. वैसे ही इसके नीचे की तरफ जो लेयर होगी एंडोस्टियम जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एंडोक्रेनियम. ठीक है, वन थिंग हियर टू नोट दैट द पेरिक्रेनियम एंड द एंडोक्रेनियम, द लेयर बीनीथ द स्कल बोन, ठीक है, क्रेनियल कैविटी के अंदर की तरफ, they are connected with each other by the means of
sutural ligaments at the प्लेसेस ऑफ सूचर्स, जहाँ जहाँ पे जैसे दो पैराइटल बोन के बीच में सूचर है तो वहाँ पे आपकी एंडोक्रेनियम और एपिक्रेनियम दोनों एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे। इसका मतलब हम बोले या तो जैसे एक बेड है, दो बेड है, चिपका के रख दिया आपने, बट दोनों के बीच में कहीं तो जॉइंट होगा, तो एक बेड का चादर दूसरे बेड की चादर से उस दोनों के जंक्शन के बीच से जुड़ा हुआ रहेगा ऊपर से नीचे पूरा, ठीक है। So at the sutures the periosteum on the outer surface of the bones is continuous with the periosteum on the inner surface of the skull bones, ठीक है। आउटर पेरियोस्टियम को हमने पेरिक्रेनियम बोला था, इनर पेरियोस्टियम को हमने एंडोक्रेनियम बोला था। I don't think you people should have any doubt till now. Okay, so now moving ahead to the nerve supply of scalp। ये जो मैंने लास्ट अभी आपको पेरिक्रेनियम बताया, एंडोक्रेनियम और एपिक्रेनियम पेरिक्रेनियम अटैच्ड रहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है अप्लाइड एनाटॉमी में हम फिर देखेंगे, ठीक है। नो मूविंग अहेड टू द नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प हैज़ अ वेरी वेरी रिच इनर्वेशन, ओके। In front of the auricle and behind the auricle we have 5 nerves, okay। In front we have 4 sensory and 1 motor, similarly behind also we have 4 sensory and 1 motor nerve। So in front region from medial to lateral we will start that we have supratrochlear nerve and then supraorbital nerve, both are the branches of your ophthalmic nerve। Then we have zygomatico-temporal nerve which is a branch of maxillary nerve, and then we have a motor branch that is temporal branch of facial nerve, obviously for the muscle of scalp in the anterior portion, that is frontal belly of occipitofrontalis muscle। Then we have also a nerve that is your auriculotemporal nerve। This auriculotemporal nerve, it is a branch of mandibular nerve। So these are the 5 nerves presenting or supplying the anterior part of the scalp। Now the area of scalp supplied behind the auricle is your 4 sensory again and 1 motor nerve। The first sensory nerve is your great auricular nerve, great auricular nerve। Then we have posterior auricular branch of facial nerve, again it is a motor branch supplying the occipital belly। Then we have lesser occipital, greater occipital and third occipital nerves respectively supplying the posterior part of the scalp, ठीक है। अब कितना एरिया सप्लाई कर रहा है वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राटोक्लियर नर्व, दे आर द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन as told before and winds from the supraorbital margin to supply the scalp। supraorbital जो है वो ज़्यादा लेंथ तक सप्लाई करता है और supraorbital जो है वो कम पोर्शन तक, लगभग आपकी वर्टेक्स जो हाईएस्ट पॉइंट है स्कल का यहाँ तक आपकी supraorbital नर्व सप्लाई करती है। Then comes the zygomatico-temporal nerve, which is a branch of maxillary nerve and supplies the scalp over the temple region, okay। Then we have auriculotemporal nerve, it is a branch of mandibular nerve and it ascends over the side of head in front of the auricle, okay। तो टेम्पल रीजन और ऑरिकुलोटेम्पोरल ये पूरा एरिया सप्लाई कर रहा है ऑरिकल के सामने वाला। देन पोस्टीरियर पोर्शन में आपकी सबसे पहला ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ना एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो आपकी फ्रंट है ईयर के आगे स्कैल्प का पोर्शन वो आपकी क्रेनियल नर्व से सप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं, और पीछे वाला जितना पोर्शन है वो आपकी सर्वाइकल प्लेक्सस से ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। जैसे आपकी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है ये आपकी सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है, जिसमें C2 और C3 का कंट्रीब्यूशन है, ओके। नाउ देन लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, इट इज अगेन अ ब्रांच फ्रॉम द सर्वाइकल plexus and it supplies the lateral part of the occipital region and skin over the medial surface of auricle। इतना डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नर्व सप्लाई का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट में। देन ग्रेट ऑक्सीपिटल नर्व, अगेन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डॉर्सल रेमस ऑफ C2। इससे पहले हमने देखा था क्या, लेसर ऑक्सीपिटल, ये आपकी वेंट्रल डिवीजन थी C2 की, जबकि ये आपकी ग्रेटर ऑक्सीपिटल इट इज़ अ डॉर्सल रेमस और dorsal rami of the C2 nerve and it supplies the skin of the back side as far as the vertex। Last is the third occipital nerve, again it is a branch of the dorsal ramus from C3 nerve and it extends over the back of scalp and supplies it, okay। So this small diagram is very very important, you need to draw it very well and memorize all the nerve supply with their root values। Now coming to the arterial supply, same as the nerve supply we have arterial supply also। In front of the ear we have 3 arteries and behind the ear we have 2 arteries,
all these vessels, they are branches of external and internal carotid arteries, directly or indirectly. Okay, in the starting of lecture only I have told you that scalp has a very rich blood supply. Reason आपको यहाँ पता चल रहा है to flourish or nourish the hair follicles. Okay, that's why also any small cut or injury in this area leads to very profuse bleeding. Okay, now the majority of these vessels, they lie in the superficial fascia, and they are formed by the supratrochlear and supraorbital arteries in the front region. Again, they are the branches of your ophthalmic artery. जैसे आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व थी, नर्व सप्लाई में यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, तो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. ठीक है. नाउ दे असेंड ओवर द फ्रंट ऑफ द फोरहेड एंड सप्लाइज द स्कैल्प अप टू द वर्टेक्स एरिया. ओके. नाउ next artery is your superficial temporal artery. Superficial temporal is a terminal, one of the terminal branch of the external carotid artery, and it ascends in front of the auricle. कान के सामने जो होता है वही ऊपर की तरफ जाता है, auricular temporal nerve का accompany करता हुआ, और again it will supply the front portion of the scalp region. Then we have two more arteries, that is posterior auricular in the posterior portion and the occipital artery. ठीक है. तो posterior auricular branch, it is a branch of external carotid artery again, and ascends behind the auricle to supply the scalp above and behind the auricle. And last is your occipital artery. It is a branch of the external carotid again, and it ascends in a company with the greater occipital nerve. And all these vessels, whether they are branched from the internal carotid or from the external carotid, they do a very free anastomosis in the scalp. So there is a free anastomosis between the branches of external and internal carotid arteries in the scalp. Is it clear? तो जितनी आर्टरीज आपने अभी पढ़ी कौन कौन सी, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. यहाँ नीचे वाला डायग्राम देखिए, सामने की तरफ बना हुआ है नोज ट्रायंगल सा. ठीक है. तो सबसे पहले आपकी सुप्रा ट्रोक्लियर, देन सुप्रा ऑर्बिटल, देन सुपरफिशियल टेम्पोरल, कान के पीछे की तरफ आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और पीछे की तरफ आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी. इन्हीं आर्टरीज को एकम्पनी करती हुई आपकी वेन्स होती हैं. ठीक है. देखेंगे यहाँ पे सामने की तरफ से आपकी दो वेन आ रही है. मिडिल यू हैव सुप्रा ट्रोक्लियर, लेटरली यू हैव सुप्रा ऑर्बिटल. बोथ द वेन्स टुगेदर comes down bringing the venous blood, and at the angle of eye, medial angle of eye, they both unite to form the angular vein. medial angle पे हो रहा है तो angular vein नाम रख दिया. अब यही जो है फेस पे ऑब्लिकली ट्रेवल करता हुआ ये लेटरली नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है. तो यही फेशियल वेन है. यही फेशियल वेन आपकी नीचे आते गई देखिए. उसके बाद फिर अब दूसरा तरीका देखेंगे. कान के सामने, बिल्कुल कान के सामने टेम्पल रीजन से एक ब्लड वेसल थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, उसी को एक्कम्पनी करती हुई सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होगी. तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन नीचे से आ रही है, ऊपर से नीचे, और इनसाइड ऑफ टेम्पोरल रीजन और यू कैन से इंफ्रा टेम्पोरल रीजन एक वेन आती है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी वेन. देखिए आप, सुपरफिशियल टेम्पोरल आई, एक छोटी सी वेन बनी हुई जिसका नाम टर्म किया हुआ है मैक्सिलरी वेन. ठीक है. इस मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के कारण आपकी एक दूसरी वेन बनती है जिसे हम बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ठीक है. तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन टेम्पल रीजन से ब्लड लेती हुई आई, और पूरा आपकी मसल ऑफ मास्टिकेशन वाले एरिया से आपकी मैक्सिलरी वेन ब्लड लेते हुए आई. ठीक है. दोनों मिलकर क्या बनाए, रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ठीक है. अब आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर या लैम्डा शेप स्ट्रक्चर दिखने लग गया. ठीक है. तो ये जो लैम्डा शेप्ड स्ट्रक्चर है, अब इसका जो सामने की तरफ लेग आ रहा है इसे हम बोलते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. जो लेग पीछे की तरफ जा रहा है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. Now, the anterior division of retromandibular vein, it joins with the facial vein to form common facial vein, which eventually drains into the internal jugular vein. Clear? Now, जो posterior leg था, पीछे वाला leg, it joins with the posterior auricular vein. पीछे की तरफ से, कान के पीछे की तरफ से लेके आएगी. तो posterior division of retromandibular vein और posterior auricular vein, they together join to form the external jugular vein, which eventually drains into the subclavian vein. Is it clear? So this is a very important diagram which will be useful in the venous drainage of scalp, venous drainage of face,
टेरिगॉइड वेनस फ्लेक्सस कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इन एवरी डायग्राम एक्सटर्नल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन, हर जगह आपको ये डायग्राम काम आने वाला है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, नहीं समझ आए तो फिर से पूछिए। ओके, ये फिर से वही आपकी जो एमिजरी वेन्स है उनकी कहानी बता रहे हैं थोड़ा सा हम। द वेन्स ऑफ स्कैल्प दे आर कनेक्टेड टू द डिप्लोइक वेन्स, ठीक है, एंड द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस बाय द मीन्स ऑफ वॉल्वलेस एमिजरी वेन्स। तो आपको ब्लैक ब्लू कलर का जो ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है, दिस इज योर सुपीरियर सेजाइटल साइनस, जो कि डूरल वेनस साइनस है, ब्रेन की कैविटी के जस्ट बाहर है ना, क्रेनियल कैविटी के अंदर है, और ये वेन से कनेक्टेड है सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू। तो इमेजरी वेन्स जो होती हैं वो वॉल्वलेस रहती हैं, वॉल्वलेस रहने के कारण इनका फ्लो दोनों साइड हो सकता है। तो आपकी सुपरफिशियल से इन्फेक्शन लेके अंदर भी आ सकती है, अंदर से इन्फेक्शन लेके बाहर भी जा सकती है। विच इज़ मोर डेंजरस, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? ऑब्वियसली बाहर से अंदर की तरफ जाना, अंदर में इन्फेक्शन यूजुअली पहुँचता नहीं है, बहुत सिक्योर्ड कैविटी है क्रेनियल कैविटी। नाउ कमिंग टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज of the scalp can be categorized into draining in the submandibular lymph nodes, into the deep cervical lymph nodes and occipital lymph nodes, and finally into the superficial cervical lymph nodes. So lymph vessels in the anterior part of the scalp and forehead region will drain into the submandibular lymph nodes, while the area of scalp above the ear, ओके, विल ड्रेन इनटू द सुपरफिशियल पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसे हम प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। लिम्फ वेसल्स अबव एंड बिहाइंड द ईयर विल ड्रेन इनटू द mastoid ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एंड वेसल्स इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑक्सीपिटल पार्ट विल ड्रेन इनटू द ऑक्सीपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या बोला? सबमैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, प्रीऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, मैस्टॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड द ऑक्सीपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। जो जहाँ पे है वहीं पास में ही कचरे में डालते हैं। आप कभी भी अपना कचरा डालने के लिए बाजू वाले रूम के डस्टबिन में नहीं जाते हो, आपके रूम में जो डस्टबिन है आप उसमें डालोगे, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज एकदम नियर बाई लिम्फ नोड्स में वो डालते हैं। उसके बाद फिर उस कचरे को उठा के आप, हो सकता है बड़े वाले कचरे के डिब्बे में बाद में जाके डाल के हो, तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ऑल दिस लिम्फ from this individual lymph nodes now will finally get drained into the deep cervical group of lymph nodes. Okay, now coming to the very important part of the scalp, that is your applied anatomy. सिर्फ applied anatomy पे कई बार सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला sebaceous system, हमने बोला था स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में, इट इज़ वेरी रिच इन स्वेट एंड sebaceous glands। कहीं पे भी स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी कोई अगर डिजीज़ है तो वो भी ज़्यादा होगी, तो सीबेसियस सिस्ट होने का चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा, स्कैल्प वुंड्स आर वेरी पेनफुल एंड ब्लीड प्रोफेशनली। अब ये क्यों होगा? हमने सेकंड लेयर पे आए थे, देखो सेकंड लेयर पे क्या हुआ था। सेकंड लेयर में आपकी हमने बोला इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ फाइब्रो फैटी टिश्यू, फाइब्रो मतलब फाइब्रस टिश्यू। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वो लेयर जो है वो बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, और हर छोटे कंपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी नर्व्स और वेसल्स भी ट्रेवल कर रही हैं। तो सोचो अगर उस किसी भी छोटे कंपार्टमेंट में आप किसी नर्व्स को कंप्रेस कर दो या इंज्योर कर दो तो क्या होगा, उसके कारण बहुत ज़्यादा पेन सेंसेशन होता है। जैसे हमारे टूथ में है, बहुत छोटा सा चीज़ है, बट जब दांत का दर्द होता है तो बहुत सीवियर होता है ड्यू टू द compressed nerves within that small cavity। सिमिलरली यहाँ पे भी है। प्रोफ्यूज ब्लीड क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ जो वेसल्स हैं वो आपकी फाइब्रस टिश्यू से अटैच रहती हैं, सो दे फेल टू कॉन्स्ट्रिक्ट इन केस ऑफ एनी इंजुरी। तो उस केस में क्या करना है आपको, स्कैल्प को आप एक्सटर्नली कंप्रेस करके रखते हो। तो कहीं पे भी आप वेसल को कंप्रेस करोगे तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ऑटोमेटिकली। नो, नेक्स्ट इज द डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कौन सा है, आप बताओ? फोर्थ लेयर जो थी आपकी कौन सी थी, लूज एल्वेओलर टिश्यू की। क्यों बोलते हैं इट इज नोन एज डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प? बिकॉज एनी पस और ब्लड प्रेजेंट हियर कैन इजीली स्प्रेड थ्रू आउट। सो इन्फेक्शन फ्रॉम द स्कैल्प कैन बी ट्रांसमिटेड टू द इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल्वलेस एमिजरी वेन्स दैट पास थ्रू दिस लेयर। ओके, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन ब्लैक आई के बारे में हमने शायद आपसे डिस्कस नहीं किया अभी तक। ब्लैक आई क्या होता है? हाँ जी,
ब्लैक आई क्या है? आँख काला पड़ गया ना, है ना। आँख काला पड़ गया, क्यों पड़ गया? आँख तो काला बहुत तरीके से पड़ सकता है, हम स्कैल्प में क्यों पड़ रहे हैं? किसी ने मुझे डायरेक्ट मुक्का मार दिया, आँख काला पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल, लोकल इंजरी के कारण, ठीक है। जो वेसल्स वहाँ की कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डायलेट होंगी, तो उसके कारण धीरे धीरे काला पड़ना स्टार्ट होगा। हो सकता है मैं गाड़ी से गिर गया, मेरी ऑर्बिटल प्लेट फ्रैक्चर हो गई, तो भी क्या बोलते हैं, वहाँ की वेसल रप्चर होंगी, तो भी क्या बोलते हैं, ब्लैक आई हो सकता है, ठीक है। तो ब्लैक आई कैन ऑकर ड्यू टू लोकल वॉयलेंस कॉजिंग सबक्यूटेनियस एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड इनटू द आईलिड्स। इट मे विल हॉकर। अब अच्छा, अब ये बताइए, आप जब भी इस तरीके का होगा, लोकल वायलेंस होगा, फ्रैक्चर हुआ, तो इसमें क्या होगा, हेमरेज जो है, ब्लड हेमरेज जो हुआ, दैट विल ऑकर सून आफ्टर द recipient of injury, okay, and black discoloration of eye will appear very sooner, or it may occur within few hours of the injury. Is it clear? So दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सपोज़ मेरे सिर पे इंजरी लगी है ना, आँख वाँख में चोट नहीं लगी, सिर पे डायरेक्टली इंजरी लगी, और मेरी जो फोर्थ लेयर है उसमें जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर हुई, ठीक है। सो ब्लो ऑन हेड में ऑल्सो लीड टू ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ blood vessel in the loose areolar tissue layer beneath the epicranial aponeurosis. Okay, now what will happen, blood from the loose areolar tissue layer now will start trickling slowly. ऐसा तो नहीं ना कि पानी और ब्लड वेसल रप्चर हुआ या एकदम खूना खून, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या ट्रिकल करना स्टार्ट हुआ। अब वो धीरे धीरे कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, आप बताइए, पीछे कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है वो, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन तक, ठीक है। साइड में कहाँ तक जा सकता है आपकी वो ज़ैगोमेटिक आर्च तक, बट एंटीरियरली कहाँ तक जा सकता है, एंटीरियरली आप एज्यूम कीजिए। एंटीरियरली हमने बोला था भाई जो ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल है, इनका एंटीरियर अटैचमेंट जो है वो कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, इट इज अटैच टू द अपर आईब्रो की स्किन एंड सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू। सो एंटीरियरली इट में ट्रिकल डाउन अंडरनीथ द फ्रंटल वैल्यू ऑल्सो. So it will involve first the upper eyelid and then slowly it will trickle down within a couple of days into the lower eyelid. Okay, so the gravity will assist this accumulation of blood in the eyelids. Blood clots will appear and then slowly the eye will appear black. This is also black eye. Here this is due to the injury in the fourth layer of the scalp. ठीक है, तो पहला आपने बोला ब्लैक आई लोकल इंजरी ट्रॉमा के कारण हो सकता है, डायरेक्ट ब्लो के कारण हो सकता है, दूसरा ऑर्बिटल फ्रैक्चर होने के कारण हो सकता है, तीसरा हमने बोला भाई कि फोर्थ लेयर में इंजरी होने के कारण हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस ये था कि फोर्थ लेयर में इंजरी होगा तो पहले आपकी अपर आईलिड ब्लैक पड़ेगी, फिर स्लोली आपकी लोअर आईलिड ब्लैक पड़ना स्टार्ट होगी, दैट ऑल्सो इन अ कपल ऑफ डेज, नॉट इमीडिएटली, बट इन केस ऑफ लोकल ट्रॉमा द ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ आई विल अपीयर वेरी सुन. Is it clear to everyone? This is very important. Okay, so you all must know this. Now next is your cephalohematoma. Now what is cephalohematoma? The blood clot is present between the pericranium and the calvaria and will assume the shape of the related bones, producing some localized swelling. अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, cephalohematoma मतलब क्रेनियम के आसपास में कहीं पे ब्लड का जमना. अब हमने बोला भाई कि अगर पेरिक्रेनियम के नीचे कोई अगर इंजरी हो जाए और बोन के बीच में, ठीक है, ब्लड वेसल क्रॉस कर रही थी, ठीक है, अब ब्लड वेसल जो रप्चर हुई पेरिक्रेनियम के नीचे है और बोन के ऊपर है. पेरिक्रेनियम का हमने बोला कि पेरिक्रेनियम और एंडोक्रेनियम जो है दोनों एक दूसरे सूचर्स के थ्रू अटैच रहते हैं, इसलिए जितना भी ब्लड ट्रिकल होगा वो उस बोन का शेप एज्यूम करेगा. सपोज पैरेटल बोन के नीचे अगर आपकी इंजरी हुई है तो पैरेटल बोन का शेप एज्यूम करेगा, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे इंजरी हुई है तो वो ऑक्सीपिटल बोन का शेप एज्यूम करेगा. इज इट क्लियर? सो दैट इज योर cephalohematoma. Now next is your caput succedaneum. Caput succedaneum क्या होता है? It is a temporary swelling due to the edema of a portion of the scalp in a newborn. ठीक है, ये क्यों होता है? During the act of parturition, when the baby passes through the vaginal canal, there may occur interference in the venous return of the blood from the scalp and will lead to a temporary swelling and edema present in the scalp region. This is known as caput succedaneum. This is a temporary process, temporary injury. Okay, now next is your safety valve
hematoma. Now, what is safety valve hematoma? Safety valve hematoma, in children, both the dura mater and the pericardium, they are intimately attached to the skull. Okay. Now, any fracture of skull vault causes tearing of both the dura mater and pericranium. Consequently, what will happen that the intracranial hemorrhage may make its way through the line of fracture and collect in the subcutaneous aponeurotic tissue. ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं ड्यूरामेटर रप्चर हुआ, पेरिक्रेनियम रप्चर हुआ और सबएरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जाके आपके धीरे 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 जो है ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एज अ रिजल्ट होगा क्या, हमने फिर वही सेम बात क्या कहते हैं, पीछे आपकी बोनी अटैचमेंट है, सामने है नहीं, सामने से लेके पीछे ये थ्रू एंड थ्रू स्पेस है, सब एपोनेरोटिक स्पेस. ठीक है, तो वहाँ आपका ब्लड ट्रिकल होके बढ़ते जा रहा है. तो इससे हुआ क्या, एक अच्छा चीज़ दैट हेमेटोमा तो हुआ, ब्लड तो क्या कहते हैं निकला, ब्लड इकट्ठा भी हुआ, बट उसको जमा होने के लिए बहुत जगह मिल गई, बहुत टाइम मिल गया. तो उसके कारण क्या है, ब्रेन टिश्यू जो है वो कंप्रेस नहीं होता जल्दी से. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द साइन ऑफ सेरेब्रल कंप्रेशन डू नॉट डेवलप until the subcutaneous tissue or subcutaneous space is completely filled with blood. ठीक है, so it is a hematoma but it is a safety valve hematoma. तो such collection of blood in the subaponeurotic tissue or space is known as safety valve hematoma. So this must be remembered by you people. इसमें ये सारे नाम आपको एक तो पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं मैं बोलूँगा कि सेफेलोहेमेटोमा, कैपोट सक्सीडेंटम ये सब आपको एकदम डिटेल में पता हो, बट डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कौन सी लेयर है, 4th लेयर है, ये आपको पता होना चाहिए. क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए. ब्लैक आई आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इज इट क्लियर? एंड ऑल द लेयर्स ऑफ स्कैल्प. सो अगेन दिस इज ब्लैक आई, लोकल इंजुरी के कारण. ये आपका कैपोट सक्सीडेनम, सेफेलोहेमेटोमा, इनका डायग्राम दिखाया हुआ है. ओके, थैंक यू.